Okay. Okay, Yes, so ma'am. revising cell structure and functions. The cell was first discovered by Robert Hooke. He observed cork cells, the bark of the tree, under his self-styled microscope, and he noticed certain partition boxes या compartments उसने notice किए, और ये boxes जो थे they were appearing like a honeycomb structure, और क्योंकि वो compartments की तरह appear हो रहे थे तो रॉबर्ट हुक ने उसको हर जो compartment था उसको term, he coined the term cell because it means a compartment. Now we know it that cells are building block of all living organisms. इसका मतलब ये हुआ कि many cells together form a organism. जैसे कि एक के बाद एक brick आप definite pattern में lay करते हैं, it forms a whole wall. Similarly, if these cells are arranged in a definite manner, they form the whole organism, as you can see it here. But cell otherwise is a complex living structure about which we'll be studying in this chapter. We have already studied all these things. जो cell होते हैं या organisms होते हैं, they differ in their number, shape and size. वो सारे organisms which are made up of more than one cell, they are called as multicellular organisms. हम सारे multicellular organisms हैं, like insects, human bodies, plant bodies. We are all multicellular organisms, the ones which we can see. But there are certain organisms which are made up of only a single cell. एक cell से बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं unicellular organisms. Uni means one. उनके example हैं amoeba, euglena, paramecium, chlamydomonas. Single cell is performing all the functions which a multicellular organism is performing. Now, all the multicellular organisms have different types of cells. ये जो सेल्स होते हैं दे डिफर इन डिफरेंट शेप्स. कैसे शेप्स? जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारा टाइप के 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. एक टाइप के सेल आपको शो किए हुए दे द स्मूथ मसल सेल्स. ब्लड सेल्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे जो हैं दे आर ब्लड सेल्स. और ये जो ब्लड सेल्स हैं दे आर अगेन फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. इनकी शेप अलग अलग होती है. नर्व सेल का फंक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि नर्व सेल्स जो होते हैं दे आर द वंस व्हिच आर ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड बैक एंड वाइस वर्सा. तो दे आर द लॉन्गेस्ट सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. फैट सेल, ओवम और स्पर्म जो है मेल और फीमेल गेमीट्स हैं, एंड वील बी स्टडीइंग अबाउट देम इन चैप्टर रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लास्ट P4 में. और ये जो हैं they have different shapes. So all these cells have different shapes. So multicellular organisms have different types of cells which are present in their bodies. उनकी shapes अलग अलग होती है. अब जो two organisms जब आप लेते हो, let's take example of small organism and a big organism. तो जैसे आप रैट और एक एंट को कंपेयर करते हो तो दे डू नॉट डिफर. उनका जो साइज होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सेल बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स. इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स थोड़े हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बिगर है दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ सेल्स. एंड फॉर योर नॉलेज द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग which can be seen with the naked eye. Ostrich is a bird. And the smallest cell is the mycoplasma, या फिर उसको बैक्टीरिया भी कहते हैं. That is the smallest cell. Then different levels of organization. जैसे कि हमको पता है हर living organism जो है वो उसकी body में बहुत सारे organ systems, जो living cell होता है that is the basic structural unit of an organism. और ये बहुत सारे group of cells which perform a similar function of same type form tissue. ठीक है. और ये टिश्यूज जो होते हैं दे टुगेदर मेक मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट. मतलब जो टिश्यूज होते हैं दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें ऑर्गन्स लिवर है, देयर इज इंटेस्टाइन, देयर इज ईसोफेगस, देयर इज स्टमक. तो ये सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, इनफैक्ट सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म पूरा बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे मिलकर टुगेदर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लेकिन बेसिक लेवल जो है दैट इज सेल। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द डिफरेंट, अगर हम एक सेल को पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल के जो है एक टिपिकल सेल के, लिविंग सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, this is the outermost part of the membrane, then cytoplasm and then the nucleus. Let's study about each of them. Cell membrane जो है the outermost part of the cell है, इसको बहुत ही थिन आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को, बाइंड करती है सेल के कंटेंट्स को, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ये लिविंग भी है और पोरस भी है। पोरस मतलब इट इज हैविंग होल्स इन इट, पोर्स इन इट। तो अब इनका क्या फंक्शन है, पोर्स का क्या फंक्शन है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, ये आपने याद रखना है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स। मतलब कि कुछ एक सिलेक्टिव, क्योंकि सेल में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो कहीं और से आएंगे, सो इट अलाउज द एंट्री ऑफ दो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस। क्योंकि रिएक्शन हो रहे हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे और हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स कहीं और रिक्वायर्ड हो, दे हैव टू मूव आउट, वेस्ट हैज टू गो आउट ऑफ द सेल, तो उसको एग्जिट के लिए भी ये पोर्स रिक्वायर्ड है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। एंड इसका दूसरा फंक्शन है कि ये कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के जो कंटेंट्स है उसको दूसरे बाहर सराउंडिंग के साथ सेपरेट करता है, और ये बाउंड्री जो है सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ बाउंड्री, तो ये दूसरे सेल के साथ भी उसको सेपरेट करती है, राइट। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देन इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो होते हैं दे आर फिक्स्ड, क्योंकि वो फिक्स्ड है तो वो मूव नहीं कर सकते, तो बहुत सारे जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड्स, रेन, मतलब देयर आर सो मेनी कंडीशन, एक्सेस ऑफ वाटर, जैसे कि प्लांट को अपने आप को सेव करना है, तो इसके लिए प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है इन टर्म्स ऑफ अ थिक आउटर कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इट इज नॉन लिविंग एंड इट इज रिजिड, रिजिड मतलब वेरी हार्ड, और इसका फंक्शन ये हो जाता है, एक तो वो बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द प्लांट cell in providing protection against all these variations, atmospheric conditions. Moreover, cell wall जो है provides a definite shape also, rigidity also to the plant cell, ठीक है। और ये outermost होती है in case of plant cell wall। ये देखिए this is thick one। अब second basic component है cytoplasm। साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस है दैट ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय साइटोप्लाज्म। यहाँ पर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, ये वाला। इसमें सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो इसके अंदर सस्पेंडेड है, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेलीज लाइक जैसे गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे के सारे जो है सस्पेंडेड हैं इन द साइटोप्लाज्म। दैट इज द साइट फॉर various reactions which are taking place in cytoplasm. Now third important and most important part of the living cell is nucleus. Nucleus जो होता है generally spherical होता है and it is generally located in the center of the cell, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होता है। न्यूक्लियस जो होता है एज यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी पोरस है। पोरस मतलब इट हैज होल्स इन इट, तो ये उनका काम भी यही है। साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल चाहिए वो इन एंड आउट ऑफ द सेल सिलेक्टिवली परमिएबल है, दैट पासेस थ्रू दिस, एंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट हियर, और इसमें सस्पेंडेड है द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जिसको क्रोमोसोम्स इन टर्म्स ऑफ जीन्स कहते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर सस्पेंडेड इन हियर न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर genes present है, and these genes are the ones which are carrying all the information in form of coded message as DNA, which is being inherited from our parents. So it is the site of inheritance. तो और एक और चीज जो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड है दैट इज अ न्यूक्लियोलस, अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इट इज द साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस occurs. Now nucleus is called as the brain of the cell. Why it is called as brain of the cell? Because it is the one which is doing all the functions
all the important functions. It is control center of the cell. So looking at the functions of the cell, it is the site for inheritance and it acts as a control center of the activities of the cell. जितना भी living content है cell का, that is including cytoplasm and nucleus, that is termed as protoplasm. Cells basically दो तरह से divided हैं. एक है prokaryotic cells, that is the cells having nuclear material, लेकिन उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. अगर हम एक सेल ड्रॉ करते हैं तो हम सेल में एक टिपिकल राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसा कोई जो राउंड स्ट्रक्चर विद अ क्लियर डिमार्केटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है जिन सेल्स में, उनको आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस. ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ अर्थ के ऊपर, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास, कि नेक्स्ट क्लास इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर इन क्लास 9th, तो हम पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर द फर्स्ट living organisms which appeared on this earth. बिल्कुल beginning में, and they are present today also. So जैसे जैसे complexity body design में बढ़ती गई, वैसे वैसे नए organism और evolve होते रहे, और उनमें एक है eukaryotes. ठीक है, तो ये जो prokaryotes है, they are the cells having nuclear material without the nuclear membrane. उनका nuclear membrane नहीं है. ठीक है, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियस, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया. इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स है. यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, दीज आर द सेल्स व्हिच आर हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बिल्कुल प्रॉमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. अब प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो तरह के ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. इनको छोड़कर बाकी सभी के सभी यूकैरियोटिक organisms है या यूकैरियोटिक cells हैं. Next comes cell organelle. What are cell organelle? Cell organelles are the smaller parts of the cell which are suspended in the cytoplasm. हमने यहाँ पर 3 पढ़े, हायर क्लासेस में जाके हम सारे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 ही तरह के सेल ऑर्गेनेली करने हैं. कुछ बुक्स में न्यूक्लियस को भी टर्म कर लिया जाता है एज सेल ऑर्गेनेल. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कैन बी कंसिडर्ड आल्सो. तो हमने एक पढ़ लिया है. दूसरा है वैक्यूल. वैक्यूल्स जो होते हैं देयर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, एम्प्टी सैक्स होते हैं, खाली स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं दे आर स्टोर्ड इन देयर. So generally in plant cell it is present in the center and occupies maximum space, and that is why it pushes the nucleus to the side. And in case of animal cell जो vacuoles होते हैं generally absent होते हैं, अगर present होते हैं तो बहुत small होते हैं. You will be seeing in this structure. ये देखिए, ये vacuole है. It is in case of plant cell almost occupies maximum space and pushes the nucleus to the side. In case of animal cell you cannot see the vacuoles. ठीक है ना, vacuoles बहुत small होते हैं, अगर होंगे present, नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है. The second one we have to study is plastids. Plastids are colored bodies. They are found only in plant cells. Animal cells में plastids absent होते हैं. ठीक है. अब 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं. एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट और फिर ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं व्हिच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स. क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जैसे ऑरेंज, रेड कलर एक्सेट्रा टू फ्रूट एंड फ्लावर्स. ये क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फ्रूट और फ्लावर को उनका कलर देते हैं. क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जिसके कारण प्लांट ग्रीन अपीयर होता है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल हमें पता है दैट इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग अ प्लांट सेल्फ एफिशिएंट टू मेक इट्स ओन फूड. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं. And the third one is leucoplast, which is the one which is doing the storage purpose. ठीक है. Plastids जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ present in plant cells. You can see a typical plant and animal cell. ये जो plant और animal cell है they are present
अदरवाइज एक टिपिकल प्लांट में और एक टिपिकल एनिमल में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, लेकिन हम अपने लेवल पे ये स्ट्रक्चर करेंगे जहाँ हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ बस पोजीशन लोकेशन उनकी डिफर करती है। प्लांट सेल में जनरली इट इज पुश टू द साइड एंड इन एनिमल सेल इट इज जनरली प्रेजेंट इन द सेंटर। Then in case of plant and animal cell, the cytoplasm jelly-like substance is present. In case of plant and animal cell, both are cell membrane is present in both the cells. ठीक है, लेकिन outermost membrane in case of animal cell is cell membrane. In case of plant cell, it is cell wall. So cell membrane is present inner to the cell wall, and then there are these powerhouse of the cell organelles which are called powerhouse of the cell, which are called as mitochondria, or ये mitochondria are the ones which are storing the energy for the cell. In addition to this, we will not be studying about more cell organelles right here in this class. We will be studying about them in class 9th. We have additional two structures which are chloroplast, plastids, green plastids, which are the ones which are giving green color to the plant, and they are present in large number, and vacuoles. ठीक है, and that is how we can compare plant and animal cell. That is all. If you have any doubt, you can ask. नहीं तो हम लोग proceed करेंगे with assignment questions. Vansh beta, ma'am, please unmute themselves. हाँ जी बेटा. Ma'am, ma'am, like, can you please explain vacuoles and ma'am, what do they consist of, and what is the function? फिर से बोलिए बेटा. Ma'am, can you explain vacuoles and their function? They are the ones which are storing the beta. There are large number of oils, proteins, fats which are to be stored. ये सारी की सारी चीजें present in the vacuoles. Thank you, ma'am. Ma'am, can you define a centriole? Shrey? Ma'am, is cytoplasm living? Yes. If the cell is living, cytoplasm is also living. Haji. Next. Centrioles. Centrioles are the structures about which you will be studying in very very high classes. कोई बात नहीं, वो नहीं भी आप याद रखते तो भी कोई बात नहीं. They are structures which are present only developed during cell division time. और कुछ? Shall we start with assignment questions? Look at assignment question पर. हाँ जी बोलिए बेटा. Vansh, you want to ask something? Okay. Question number 10. Two examples each of unicellular organism and prokaryotes. Ishita? Yes, ma'am. Haji. Question number 10. Please repeat. Two examples each of unicellular organism and prokaryotes. Ma'am, unicellular is paramecium, amoeba, Prokaryotes? and prokaryotes are bacteria and blue-green algae. Bacteria and blue-green algae. Prokaryotes only. Then come to question number 11. Who observed the cell for the first time? Khushdeep Kaur? Who observed the cell for the first time? Khushdeep. Anshika. Excuse me, ma'am. Anji. Ma'am, Yes, I want to ask that algae is considered as a group of cells only. Algae is considered as? A group of cells. But it depends. Algae actually is a, yes, you can say in a one way, because it has large number of unicellular organisms like Chlamydomonas, Spirogyra, which can be present there. So, photosynthetic
होते हैं ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Because ma'am, those big green patches, so that is not one single cell. Those big green patches of algae. कुछ वो तो algae single cell नहीं है ना? cellular also। Okay ma'am, thank you. हाँ जी बेटा। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, जैसे कि the largest is the ostrich egg. नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पहले ढूंढ रहे थे। Yes, ma'am. Who observed the cell for the first time? Ma'am, Robert Hooke. हाँ, let us finish these assignment questions, then we'll come to it. Then name the lowest level of organization on multicellular organisms. Salil? Lowest level of organization, sorry. Cell. ठीक है? Give reason. Mitochondria is called the powerhouse of the cell. Narinder? Mitochondria is called the powerhouse of the cell because it stores ATP, adenosine triphosphate, which is actually ATP stored as energy. It is the one which is storing energy for the cell. It is the one which is providing energy in the form of ATP. Yes. So powerhouse. Next question. Where is the genetic information of organism present in the cell? Where is the genetic information present? Chromosomes, ma'am. Chromosomes, Chromosomes. Chromosomes in the genes also. In nucleus. Nucleus. Nucleus नहीं आप लिखेंगे. Nucleus is site for so many other things also ना. तो आप लोग nucleus नहीं लिखेंगे, आप लोग chromosomes, genes लिखेंगे. ठीक है? अच्छा जी. अब आगे बताइए. अब पूछिए अपने doubts. Ma'am, like the largest cell is ostrich cell. मैम तो उस वो मूव नहीं कर सकता तो लार्जेस्ट मूविंग सेल कौन मैम? जैसे कि हाँ? मैम जैसे कि ऑस्ट्रिच का सेल है दैट इज मैम एक यूनिट में है मैम, उसके बाद जो जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म मूव कर सकती है मैम। आपकी आवाज क्रैकिंग है, पता नहीं मेरा नेटवर्क खराब है कि आपका खराब है, बट आई वाज नॉट एबल टू हियर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। टाइप कर सकता हूँ। हाँ जी, दैट इज बेटर बेटा।